a new chapter, that is scales. Okay, so scale, you might be aware what a scale is. Scale is an instrument which is used to measure a dimension. So we will study here the basic information, types and important units, the different type of scales. So out of these, plane scale and diagonal scale and comparative scale, these are there in your syllabus. So scale, uh, so you see the dimension of a large object must be reduced to accommodate the on the standard size of the drawing sheet. This reduction creates a scale. So like this, suppose we have a drawing sheet. I have told, मैंने आपको बताया था कि जो ड्राइंग शीट बाजार में मिलेगी, दैट विल बी ए चार्ट शीट एंड दैट विल बी A4 शीट, सॉरी A2 शीट. ओके, जो चार्ट पेपर मार्केट में मिलता है वो इस साइज का होगा. इसको आप बीच में से कट कर लीजिए. ठीक है, सो दिस विल बी A3 शीट एंड दिस विल बी आल्सो A3 शीट. तो इस A3 शीट पे आपको बनाना है अपना जो असाइनमेंट है. ठीक है, तो इस पे बॉर्डर लगाना है पहले. इस बॉर्डर लगाने के लिए मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें दिया हुआ है सारा. ठीक है, इस तरह से बॉर्डर लगा के फिर आपने यहाँ टाइटल ब्लॉक बनाना है. इस टाइटल ब्लॉक का डायमेंशन था 170 बाई 65. ओके, तो इस तरह का टाइटल ब्लॉक जो बनाना है वो टाइटल ब्लॉक भी बताया हुआ आपको. देन यू हैव टू divide this drawing sheet into the 4 parts. So in 4 parts, so you will write here question 1, question 2, question 3, and if the space permits you can make here question 4. Otherwise question 3 तक आ जाएगा. तो सपोज मैंने आपको ट्यूटोरियल शीट जो कि प्रॉब्लम शीट है, ट्यूटोरियल शीट में 6 क्वेश्चन दिए, तो 6 में से 3 आ जाएंगे, दूसरी शीट यहाँ जाएगी. तो उसमें लास्ट में टाइटल ब्लॉक में यहाँ जहाँ नंबर डालना है आपने, वहां पे लिखना है आपने शीट 1 of 3. सपोज 3 शीट बननी है, दूसरी शीट पे लिखोगे शीट 2 of 3 और तीसरी पे क्या लिखोगे, शीट 3 of 3. तो अगर 2 शीट बनेंगी तो क्या लिखेंगे, शीट 1 of 2 एंड 2 of 2. अगर 4 बनेगी तो 1 of 4, 2 of 4, 3 of 4, 4 of 4. सो इस पे बनाना है. सो नाउ सपोज मैंने ऑब्जेक्ट दिया आपको. सपोज ए ऑब्जेक्ट इज लाइक दिस. जिसकी डायमेंशन से इट इज 10 मीटर. सो 10 मीटर कैनॉट बी ड्रॉन हियर. ठीक है, सो फॉर दिस वी हैव टू make use of a word which is known as scale. So today's chapter is scale. ठीक है, so either increasing scale, दो तरह के स्केल होते हैं, increasing scale and a decreasing scale. Decreasing scale. So 10 meter is how much? 10 into 1000 millimeter. So this is 10,000 millimeter. इसको मैंने अगर ड्राइंग शीट पे ड्रॉ करना है, so I will take a reducing scale. So I will say 10 millimeter is equal to 1 meter. Okay, so अगर 10 millimeter is equal to 1 meter,
So how many millimeter will be there for 10 meters? It will be 100 millimeter. So that means I will draw a line which is 100 millimeter. समझ में आया नहीं आया? So this is scale. So dimension of a large object must be reduced to accommodate the standard size of the drawing sheet. This reduction creates a scale, and the reduction ratio, which is generally a fraction, such a scale is called reducing scale. The ratio is called the representative factor. हम इसको बोलते हैं RF. ठीक है? So for full scale, RF is equal to 1:1. मीन्स जितनी ऑब्जेक्ट बनी है उतनी ही हमें बनानी है. ठीक है? अदर RFs are 1:10, 1:100, 1:1000, 1:1 lakh. समझ में? So this way representative fraction is important. So RF is the dimension of the drawing to the dimension of the object. Suppose you have to draw the height of a building. इसकी बिल्डिंग की हाइट है से 10 मीटर और 5 मीटर. ठीक है? तो आप डायमेंशन ऑफ द ड्राइंग क्या लेंगे? सपोज आपने बनाना है से 500 मिलीमीटर और यहाँ पे कितना है 5000 मिलीमीटर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो RF कितना हो गया 1/10. ठीक है? सो इट इज ऑल्सो द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द ड्राइंग अपॉन द एक्चुअल लेंथ और द एरिया ऑफ ड्राइंग अपॉन द एक्चुअल एरिया. सो इसका स्क्वायर रूट. वॉल्यूम ऑफ द ड्राइंग अपॉन द एक्चुअल वॉल्यूम, इसका क्यूब रूट. सो लेंथ ऑफ द स्केल फ्रॉम दिस definition we get this. The RF is equal to the length of scale is equal to RF into the maximum length to be measured. So this way we calculate the RF. So there are two scales I have told. One is increasing scale, another is decreasing scale. So here we are talking of the decreasing scale. Okay? So for this you must be aware of कि क्या क्या यूनिट्स हैं अपने पास. So 1 kilometer is equal to 10 hectometer. 1 hectometer is 10 decameters. 1 decimeter is 10 meter. 1 meter is 10 decimeter, and 1 decimeter is 10 centimeter, and 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So these are the types of scale. Plane scale, so it is used for dimensioning up to a single decimal place. Okay. Then we have diagonal scale. It is used for the dimensioning up to the 2 decimal place. Vernier scale, it is used for dimensioning up to the 2 decimal place. And comparative scale, it is used for comparing the two different units. Okay. And the scale of chords for measuring the constructing angle. तो अभी क्लियर हो जाएगा आपको ये. So plane scale हम पहले स्टार्ट करते हैं. ठीक है? So plane scale, this is a type of the scale which represents the 2 unit or units and its subdivision. मतलब 1.2 centimeter or 1.2 meter. So it is 1 decimal place तक. Okay. So how the plane scale is drawn? So we draw a line. We divide this into the equal number of parts. 0. We leave one division on the left side. 2, 3, 4, 5. Okay. So here we write 10. Then we divide this division into the 10 parts. Okay. This divided into 10 parts. Then this scale, plane scale is constructed. Okay. So this will measure in meters and this will be the decimeter. Okay. So RF is 1/100 because we are using in decimeter. So plane scale showing meter and decimeter. So
if we want to measure a distance, say 4 meter 6 decimeter. So 1, 2, 3, 4 is there and 6. So we go from 0 side 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it is 4.6 decimeter. Suppose it is 2.4. So how we will measure? This is 2 and 2.4. 1, 2, 3, 4. So this will represent by 2 meter and 4 decimeter. Okay. So this is a problem. Suppose we solve this problem. So it is a solution. So you understand this problem. The problem says draw a scale 1 centimeter is equal to 1 meter. To read the decimeter, to measure the distance of 6 meters. So this is the maximum length which we have to measure. So that's why we have drawn this 6 meter. 5 इधर कर लिया, 1 इधर कर लिया. Show the distance of 4 meter and 6 decimeter. ठीक है. So RF कैसे calculate करेंगे? Dimension of the drawing upon the dimension of the object. So हमको कितना measure करना है? Drawing of the scale 1 centimeter. To read 1 meter. So RF is 1 by 100. कैसे आया 1 by 100? 1 centimeter is 10 millimeter. ठीक है. Divided by 1 meter is 1000 millimeter. So it is, ये 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा. So it is 1 upon 100. समझ में आ गया? Now length of the scale कितना मेजर करना है हमें? Maximum distance is 600 centimeter. 6 meters. So it is, sorry, 600 millimeter. Sorry, 600 centimeter. Yeah, because 1000 है ना, 600 centimeter. तो हम सेंटीमीटर में कर रहे हैं. So 1 into 6, that is 6 centimeter. So what we do? We draw a line of the 6 centimeter. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ठीक है? And we divided it into equal parts. So each part will represent the large division. So this is 1 centimeter. This is also 1 centimeter, 1 centimeter. Now subdivide the first part, which will represent the second unit of the fraction. इसको हमने subdivide करना है. तो 0 आपने इधर रख लिया और उसको equal parts में divide कर लिया. ठीक है? Now take the height of the scale as 5 to 10 millimeter. ये आप कुछ भी ले सकते हैं. अभी चूंकि आप एक ही डेसिमल का यूज कर रहे हैं, so you can take it as a 1 centimeter. ठीक है? After construction of RS, so you show the distance of 4 meter 6 centimeter. Suppose इस पे आप और कोई distance आपने show करना है, say 3.4. तो 3.4 करने के लिए 1, 2, 3. So it is 1, 2, 3. So up to here 0.4. So 1, 2, 3, 4. So this will represent 3.4 or 3 meter. We'll write 3 meter 4 decimeter. समझ में आया? Now अगर कोई लाइन है, सपोज ये तो 6 सेंटीमीटर आ गया, you can divide this into 6 centimeter, you can draw the line. But suppose a line is bigger than the page, then you have to take the scale. Okay? So suppose I have this line which is say of any length, arbitrary length. I have not specified. Say AB line is there. Suppose it is 15 centimeter. And I say you divide this into 12 parts. So it will be difficult. Or I say you divide this into 7 parts. So it will be very difficult. 15 by 7 is how much? 7 to the 14 and 1 7 1 ja, then 7 4 ja. So like it will, so it is very difficult to measure
the next, so what we do to divide a line into the number of parts, equal parts, what we do, you simply draw a line, you take any line, okay, at any angle. So say it is at 30 degree, you can take any angle, and then what you do, you take this as a known line. Suppose I want to divide this into 7 parts. So I will take 7 centimeter. This line has 7 centimeter. Suppose this is A and C. So I will join this last point with this. Okay. Now I will divide, because I know this can be divided into equal parts. So I will make the 7 equal parts. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So how many parts are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So now what I do, I will take my mini drafter or the scale and I will draw a parallel line with this. I will draw a parallel line with this. I will draw a parallel line with this. I will draw a parallel line. I will draw a parallel line to BC. So this will represent 1, 2, 3, 4, 5, 6. So it will be in the 7 parts. समझ में आया नहीं आया? ये समझ में आया कि कैसे डिवाइड करना है? बताइए। Yes, sir. समझ में आया किसी भी लाइन को कैसे डिवाइड करना है इक्वल पार्ट में? सपोज मैं बोलूं कि आपके पास 19 सेंटीमीटर की लाइन है, डिवाइड दिस इन 6 पार्ट्स, तो हाउ यू विल डू? तो 19 सेंटीमीटर पहले आप ड्रॉ कर लेंगे एंड यू विल टेक एनी लाइन, ठीक है? सपोज 6 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं 6 सेंटीमीटर लाइन ये ड्रॉ कर लूंगा and I will join this line and then 6 parts. So 1, 2, 3, 4, 5. So from here I will draw a line which is parallel to this line. I will draw a line which is parallel to this line, parallel to this line, parallel to this line, parallel to this line. So now how many parts? So 1 part, 2 part, 3 part, 4 part, 5 part, 6 part. So you can divide a line of any length into the any number of parts. ये समझ में आया नहीं आया? आ गया सर सर। इसको फिर से समझ रिपीट में आया कर नहीं दीजिए। आया? सर ये रिवाइज कर इसको दिए फिर से सर। रिपीट कर दीजिए 19 सेंटीमीटर वाला। ये 19 सेंटीमीटर का मतलब ये है कि कोई भी लाइन ले सकते हैं बेटा आप। सर हमें आप 19 देखो सेंटीमीटर इक्वल का पार्ट लेना में जरूरी डिवाइड नहीं है क्या? हैं? सर हमें 19 सेंटीमीटर का लाइन ही लेना है ना? आप 19 का, बिकॉज 19 आप खींच सकते हो। सपोज आपने पहले आरएफ निकालोगे ना, अभी मैंने आरएफ निकालना सिखाया, आपको क्या समझ में आया? एक मिनट, ये आरएफ से क्या मतलब था? लेंथ ऑफ स्केल निकाला नहीं आपने? तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो मेजर करना होगा वो आप निकाल लेंगे। सपोज 19, अगर आपने 19 का स्केल है तो आप कितना 19 सेंटीमीटर निकाल सकते हो ना मैक्सिमम डिस्टेंस। यस सर। यस सर। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। आरएफ जो स्केल आपको दिया रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लेंथ ऑफ स्केल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने कितना निकाला था? देखो 6 सेंटीमीटर निकाला, नहीं निकाला? यस सर। इस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए पहले। ये कहता है ड्रॉ ए स्केल in which RF is 1 centimeter will represent 1 मीटर। तो मैं अगर 6 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करूंगा तो कितने सेंटीमीटर, कितने मीटर तक मेजर कर पाऊंगा? 6 मीटर तक मेजर कर पाऊंगा, नहीं 6 मीटर तक? यस सर, 6 मीटर तक। हाँ, तो ये 6 मीटर आपका क्या हो गया? तो आरएफ कैसे निकाला? 1 सेंटीमीटर, तो इट इज द स्केल।
डिवाइडेड बाय द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज हाउ मच, 6 मीटर, तो ये 6 मीटर आपने डिवाइड कर दिया इसको, 1 मीटर का ऑब्जेक्ट, सो लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू RF 1/100 इंटू मैक्सिमम डिस्टेंस 6 मीटर, 6 मीटर इज 600 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का स्केल आ गया आपका। तो ये आपने क्या ड्रॉ किया, ये 6 सेंटीमीटर, क्योंकि 6 सेंटीमीटर को आप 6 में डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए डिवाइड कर दिया, बट आप 19 को कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सपोज मैं ये कहूं आपके पास, you divide the 37 centimeter into 20 equal parts. So can you divide it? नो 20 सर, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हो इसको? नो सर। ये 19.5 आ जाएगा ना, यस सर। सॉरी 18.5। तो 18.5 को फिर दोबारा करोगे तो यहाँ डिवाइड करना मुश्किल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल टेक ए लाइन, किसी भी लाइन को डिवाइड करना है आपने, सपोज इट इज दिस इज ए लाइन ऑफ एक्स लेंथ, दिस एक्स में बी एनीथिंग, इसको आई से यू डिवाइड दिस इनटू 50 पार्ट्स, 50 will be more, or I say you divide it into 10 parts. So one method is, suppose इसकी लाइन की लेंथ है आपकी से 4.75, ठीक है, 4.75, कोई सड़क है ये, सपोज दिस इज ए रोड, it is 4.75 kilometer. I say you divide this into 15 parts. So it is very difficult. So what I'll do, I will draw a line, okay, choosing a RF factor which will represent the maximum length of the line which is to be measured. ये पुरानी उसमें जाओ, तो इस x को हमने डिवाइड करना है, सपोज आपने 15 पार्ट्स में, तो इसका प्रोसीजर ये है, यू टेक एनी लाइन एट एनी लेंथ, ये आपने एंगल कुछ भी ले लेना है, 10 ले लीजिए, 30 ले लीजिए, 25 ले लीजिए, ठीक है। सपोज मैंने 30 ले लिया और इसको मैंने 15 में डिवाइड करना, तो मैंने 15 सेंटीमीटर ले लिया। यहाँ 15 कैन बी डिवाइडेड इंटू 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लाइन मैंने लगा ली, ठीक है, तो उसके मैंने अगर 15 पार्ट करने हैं तो आई कैन डिवाइड। सो व्हाट इज द इजीएस्ट प्रोसीजर, यू टेक ए लेंथ विच कैन बी इजीली डिवाइडेड, ठीक है। मैंने इसको 15 पार्ट में डिवाइड करना, तो मैंने 15 सेंटीमीटर की ये लाइन ले ली और मैंने इसको लास्ट पोर्शन को यहाँ ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब 15 पॉइंट मैंने यहाँ मार्क कर लिए, 1 2 3 4 5, लाइक दिस आई हैव मार्क द हाउ मेनी पॉइंट्स, जितने नंबर ऑफ उसमें आपने डिवाइड करना है, 15। ठीक है। सो इस पॉइंट से इसके पैरेलल, इस पैरेलल लाइन के आपने एक लाइन खींचनी है, वो लाइन जहां कट करेगी वो एक डिवीजन दे देगा, फिर इसके पैरेलल दूसरी लाइन खींचनी है, फिर इसके पैरेलल तीसरी लाइन खींचनी है, ठीक है, इसके पैरेलल चौथी लाइन खींचनी है, इसके पैरेलल, तो लाइक दिस यू विल डिवाइड दिस टोटल लाइन इनटू एनी नंबर ऑफ पार्ट्स। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर, क्लियर हो गया। एक बच्चे की आवाज आ रही है, बाकी यहाँ सो रहे हैं, नहीं देख रहे। मैं तो इस तरह की वीडियो भी नहीं डाल सकता यूट्यूब पे, क्योंकि ये जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऐसे कोई नहीं पढ़ाता है, ड्राइंग पढ़ाने का तरीका ही नहीं है, ठीक है। तो ये वाला जो रिप्रेजेंटेशन है ये मैं डाल दूंगा आपके क्लासरूम में, आप इसे दोबारा से पढ़ के देखिएगा, ठीक है। आगे चलें, यस सर। ये Yes, प्रॉब्लम sir. क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लेन स्केन की ये प्रॉब्लम क्लियर हुई या नहीं हुई? यस मैं हो सर, गई। सपोज क्लियर। करो इसकी जगह आपको बोल दूं, ड्रॉ ए स्केल 1 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, ठीक है, एंड टू मेजर ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ, सपोज इंस्टेड ऑफ 6 सेंटीमीटर
I say you measure 8 meter and show a distance of say 5 meter and 4 decimeter. So can you draw the scale? आपका आंसर होगा ये वाला, ये चीज बनानी है आपको. कैन यू ड्रॉ दिस? इसको ड्रॉ कर सकते हैं? चुप है. आप लोग का किसने एडमिशन करा दिया इंजीनियरिंग में? इस तरह के इंजीनियर्स हम कहाँ से बना के निकालेंगे? तो देखिए मैंने 8 मिलीमीटर का बनाया ना, तो RF कितना होगा इसका? RF विल बी 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर. 1 मीटर. अब आंखें खोल के देख लीजिए, तो 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1000. 100 सेंटीमीटर 100 हो गया. तो सेंटीमीटर, RF 100 कितना आ सेंटीमीटर गया? सर. 100. RF कितना आ गया? 1/100. तो 100. मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्केल कितना आ जाएगा? लेंथ ऑफ स्केल. So this is equal to RF multiplied by the maximum distance to be measured. Maximum distance to be measured. तो RF कितना दिया हुआ है? 1/100. 100. और Yes, कितना sir. डिस्टेंस मैक्सिमम हमने मेजर करना है? 8 8 मीटर. मीटर है ना. सो इट इज 800 सेंटीमीटर. इसको काट दीजिए, कितना आ जाएगा? 8 मीटर. 8 सेंटीमीटर. मीटर नहीं आएगा, सेंटीमीटर में कर लिया ना. यस सर. हाँ. So now draw a line which is 8 सेंटीमीटर. बिकॉज 8 सेंटीमीटर आ जाएगा. सपोज ये 15 सेंटीमीटर आता है तो क्या करोगे? नहीं कर पाओगे. ठीक है ना. तो उस केस में आप क्या करोगे? 15 सेंटीमीटर का स्केल मान लोगे आप. यू विल से 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट्स 1.5 सेंटीमीटर. ठीक है. तो आप उस हिसाब से स्केल निकाल लीजिए. या छह इंच का फुटा है आपके पास. 6 इंच में कितने होते हैं? 15 सेंटीमीटर होते नहीं होते? ये आपको याद होना चाहिए. 6 इंच के स्केल में 15 सेंटीमीटर होते हैं. सो अप टू दिस यू कैन ड्रॉ. अदरवाइज सो आपने क्या किया? 8 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया. तो 8 सेंटीमीटर में कितने पार्ट चाहिए आपको? बिकॉज मिनिमम डिस्टेंस इज 1. So you will make here the 7 parts. So 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7. कितने हो गए? 7 पार्ट हो गए ना. तो यू राइट हियर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और इसको आप 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. ये आधा हो गया. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सो यहाँ आप डिवाइड कर सकते हैं. सपोज आपके पास स्केल नहीं है, ठीक है, कोई अननोन लेंथ आ गई, इसको तो आपने डिवाइड कर लिया. तो अभी सीधा यहाँ अगर आपने मेजर करना है, क्या कहा था मैंने? 5 मीटर एंड 3 डेसीमीटर अगर आपने मेजर करना है, तो व्हाट यू कैन डू? यू ड्रॉ ए 1 सेंटीमीटर का ऐसे स्केल बना लीजिए. इसकी लाइन खींच लीजिए ऐसे. ओके. सो नाउ 5 मीटर. तो 5 कितना देगा? 1, 2, 3, 4, 5. 5 यहाँ आ गया. 5, 3 डेसीमीटर. सो 1, 2, 3. So 3 will be here. So here you write 5 meter 3 डेसीमीटर. बस इतना सा बात है. ठीक है. सो ये तो आपने नोन बना लिया 8 सेंटीमीटर का. सपोज नोन नहीं आता नोन. ठीक है. तो आपने कोई लेंथ ली है, इसको आपने पहले डिवाइड करना है. से यू वांट टू डिवाइड दिस इनटू द 8 पार्ट्स.
कुछ भी लेंथ ले ली आपने, ये इट इज नॉट नोन 8 सेंटीमीटर, तो आपने 8 सेंटीमीटर मेजर करने के लिए यू हैव टू ड्रॉ ए स्केल. सपोज आई हैव टेकन दिस लाइन एज 5 सेंटीमीटर और say 5.1 centimeter, and I want to divide this now into 8 parts. So what I'll do, I will take any line which is say at an angle of 30 degree, and I will divide this line into the 8 parts. ठीक है, इसको मैं कितना यूज कर लूंगा, इसको मैं 8 सेंटीमीटर ले लेता हूँ. ठीक है, बिकॉज इट इज इजियर टू ड्रॉ द 8 parts. इट इज इजियर टू ड्रॉ. सो सपोज मैं 8 नहीं लेता हूं, ठीक है, तो आई कैन डू इट दिस वे आल्सो, आपको और क्लियर हो जाए बात. मैं इसको 8 सेंटीमीटर ना लेके, एंड आई टेक दिस एज 4 सेंटीमीटर. अब तो क्लियर हो जाएगा. 4 सेंटीमीटर के 8 पार्ट करने के लिए मैं क्या करूंगा, 0.5 के मैं ये पार्ट्स कर दूंगा 8. समझ में आ गया? Yes, नाउ इट sir. इज क्लियर. Yes, अगर 4 sir. सेंटीमीटर का Yes, sir. 8 पार्ट करने हैं तो इसका मतलब कुछ भी ले सकते हैं, उसके पार्ट इजीली कर पाते हैं. तो अब इसको, इस पॉइंट को आप क्या करोगे, इस पॉइंट को आप यहाँ ज्वाइन कर दोगे स्केल से, उसके ज्वाइन पैरेलल करके, ड्रॉ कर देंगे. और इसके बाद इसके साथ पैरेलल लाइन इसकी ड्रॉ कर लोगे आप सारी. समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? Yes, sir. RS. जब ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये सारे इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे. तो दिस इज हाउ वी डिवाइड ए लाइन इनटू द इक्वल पार्ट्स. समझ में आया या नहीं आया? मैंने लगता नहीं है 8 के 8 बच्चों को समझ में आया. आ तो गया दिस सर. इज अ प्लेन Yes, sir. स्केल समझ में आ रहा है. है. समझ में आ रही है सर. So this is a plane scale. This is how a problem of the plane scale is drawn. तो अब मैं ये आपको मैं दे दूंगा सारे, तो ये आप दोबारा पढ़ के समझ सकते हैं. ठीक है, ये प्रॉब्लम, सेकंड प्रॉब्लम है. देखिए अब ये कहता है इन ए मैप, यहाँ पे अब देखो आराम से, 36 किलोमीटर डिस्टेंस. तो 36 किलोमीटर तो आपको स्केल पे ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है. कर सकते हो? नहीं कर सकते. तो 36 किलोमीटर की तो कोई ड्राइंग ही नहीं होगी. ठीक है, तो 36 किलोमीटर डिस्टेंस इज शोन बाय ए लाइन विच इज 45 सेंटीमीटर लॉन्ग. तो टू ड्रॉ ए ड्राइंग ऑफ 45 सेंटीमीटर इज ऑल्सो डिफिकल्ट. 45 सेंटीमीटर इज 4.5 मीटर. कहता है कैलकुलेट आर एफ एंड कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू रीड द किलोमीटर्स, हेक्टोमीटर्स for a maximum distance of 12 kilometer. Show a distance of 8.3 kilometer on it. पहले बताओ प्रॉब्लम समझ में आई नहीं आई? Did you understand sir. the problem or not? Yes, sir. Yes, sir. एक 36 किलोमीटर का डिस्टेंस है, उसको शो करना है हमें 45 सेंटीमीटर लाइन से. आरएफ निकालना है पहले हमें. ठीक है, टू रीड ए मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ 12 किलोमीटर, show a distance of 8.3 kilometer. So we have to construct a scale first. So first of all we will draw the RF. तो RF कैसे निकालना है? तो कितना डिस्टेंस शो करना है ड्राइंग पे, ये देखो कितना है. ये RF की डेफिनेशन थी ना, Dimension of drawing by dimension of object object. dimension on the drawing divided by the maximum dimension. ठीक है, so 45 Yes, sir. centimeter is this and 36 kilometer. So 45, 35, 36 किलोमीटर को हमने सेंटीमीटर में डिवाइड कर लिया. कैसे किया? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, एंड 1000 मीटर का 100 सेंटीमीटर. So RF is 1 by 80,000. RF is 1 by 80,000. ये समझ में आ गया नहीं आ गया?
यस ये सर, कैलकुलेट कर सकते हो नहीं? यस सर, कर सकते हैं लोग। दो ही बच्चों की आवाज आती है, बाकी तो सब घन चक्कर लगते हैं मुझे। 45 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 36 इंटू 1000, ये इसका सेंटीमीटर हो गया, मीटर हो गया, इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो इट हैज बिकम सेंटीमीटर। नाउ यू डिवाइड दिस, so 3 12 जा 36 and 3 15 जा, ओके। सो अगेन यू कट इट, तो कितना आ जाएगा? 3 4 तिया 12, नहीं 3 चौक 12, एंड दिस विल बिकम 3 पंजे 15, ठीक है। दिस अगेन यू कट, so it is 20, so it is 1/20 into 4 80 into 1000, so that's why it has become 1/80,000। समझ में आ गया? यस सर, सो Yes, sir. लेंथ ऑफ स्केल क्या यस हो सर, जाएगा? समझ में आ गया। RF हमने निकाला 1/this, एंड मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ दिया हुआ रहेगा। मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है? 12 12 किलोमीटर। किलोमीटर। 12 किलोमीटर। सो 12 किलोमीटर को जब आप चेंज करेंगे 1 बाई, तो ये 15 आ जाएगा। ये 12 किलोमीटर है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 12 इंटू, समझिए ना, यस सर, दिस सेंटीमीटर sir. में है ना वो, मल्टीप्लाइड बाई 100, 100। ठीक है। सो इट विल बी 15 सेंटीमीटर, ठीक है। 15 8 120 हो गया ना। सो यस नाउ सर, यहाँ स्टेप दिए हुए हैं, देखो, ड्रॉ ए 15 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन एंड डिवाइड दिस इनटू 12 इक्वल पार्ट्स। तो 15 सेंटीमीटर लाइन यू कैन ड्रॉ, ये अभी यहाँ एनिमेशन से दिख जाएगा आपको, एक मिनट। तो अभी हम पढ़ते हैं। सब डिवाइड द पार्ट into fraction and place 0 and take a height of 5 to 10 meter for getting the look of a scale, ठीक है। so now you see here, ये सबसे पहले हमने पहला स्टेप लिया, we have drawn a line of 15 सेंटीमीटर, ठीक है, and we divide this into 12 parts, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13। तो यहां से हमने इसको 11 पार्ट में कर दिया, एंड दिस इज 12। समझ में आएगा? 12 पार्ट में आ गया, पहली वाली कंडीशन आ गई। यस सर, नाउ सब डिवाइड द फर्स्ट पार्ट विच विल रिप्रेजेंट द सेकंड यूनिट और द फ्रैक्शन यूनिट ऑफ फर्स्ट। तो हमने इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया, बिकॉज ये 15 सेंटीमीटर है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर सपोज अननोन लेंथ मिले यहाँ पे, विच इज डिफिकल्ट, सपोज ये लेंथ 15 नहीं आती है, कुछ और आ जाती है, 40 सेंटीमीटर आ जाती है, सो व्हाट यू कैन ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ 20 सेंटीमीटर आधा करके, ठीक है, और उसको डिवाइड कर लेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो दिस यस इज सर, स्केल। Yes, इसमें sir. आपको 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया। देन थर्ड पार्ट, place the 0 at the first end, number the units right side of 0 and subdivision, ठीक है। तो अभी आपने किया 5 से 10 सेंटीमीटर ये वाली हाइट खींच ली, ये वाली, so that it should look like a scale, ठीक है। so you have taken this as 5 millimeter or 10 millimeter. Now after constructing the scale, mention its RF and show, तो ये हेक्टोमीटर हो गया, इधर इधर किलोमीटर हो गया। नाउ RF इज, ये हमने मेंशन कर दिया, सो इट इज ए प्लेन स्केल शोइंग किलोमीटर एंड हेक्टोमीटर। नाउ इट सेज शो ए डिस्टेंस ऑफ 8.3 किलोमीटर ऑन। तो 8.3 करने के लिए हमने क्या किया, 8 पे हमने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करा, एंड इधर से 3, सो 1 2 3, so this will represent 8 किलोमीटर एंड 3 हेक्टोमीटर। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर, समझ में आ गया। Yes, sir. I guess. तो दिस वे प्लेन स्केल की प्रॉब्लम्स आएंगी आपको करने के लिए। सपोज मैं यहाँ कहूँ
you show a 5.8 और किलोमीटर, तो दैट मीन्स 5 किलोमीटर आप कैसे दिखाएंगे? यहाँ पर 5 किलोमीटर आ 5 पे जाएगा 8 और 8 उधर 8 के 0.3 लिए 1 2 3 0.8 हो 4 जाएगा 5 उधर 6 7 8, so this will represent 8. So here you will draw a line, dimension line, इसको ऐसे एरो लगाओगे, एरो लगा के एंड हियर यू विल राइट 5 किलोमीटर एंड 8. अगर अभी भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कभी समझ में नहीं आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। फिर आपको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए थोड़ा सा अपने आप को और तेज करना पड़ेगा। मैं इससे इससे स्लो कोई नहीं पढ़ाएगा बेटा, और इतनी तरह वो करके कोई नहीं पढ़ाएगा। मैं तो अब सोच रहा हूँ नेक्स्ट ईयर से मैं ड्राइंग पढ़ानी छोड़ दूंगा, क्योंकि इतना तो सिरदर्द नहीं हम कर सकते। आगे चलें। यस सर। यस सर। सर सो ये प्लेन स्केल की तीसरी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा, उसमें ऐसे चलेगी, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलें, क्योंकि प्लेन यस सर। स्केल हो जाएगा फिर से। यस सर। इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसे आप एंटर मारेंगे सोल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द स्केल इज अ डायगोनल स्केल। तो डायगोनल स्केल को आप समझ लीजिए। डायगोनल स्केल के लिए हमने अभी मेजर किया 5.8, सिर्फ एक डेसिमल प्लेस तक, ठीक है। सपोज यू वांट टू मेजर 5.85 और 5.87. So beyond one decimal place, if we want to go, then you have to use the diagonal scale. समझ में आ गया यस सर। प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल का फर्क? इसके लिए यस कौन सर। सा स्केल? डायगोनल स्केल। इसके डायगोनल लिए स्केल। कौन सा स्केल? प्लेन स्केल। प्लेन स्केल, ठीक है। सो प्लेन स्केल में हमने क्या किया था, अभी हम एग्जांपल से समझ लेंगे, आप पहले समझ लीजिए। वी हैव ड्रॉन ए लाइन, प्लेन स्केल में we have just drawn a line and we have divided this into the equal number of parts, okay, and here we have subdivided the last part into the equal numbers. So this was the plane scale. Suppose I want to make a diagonal scale. So how to make? So first of all I will make a scale like this, जैसे मैंने इसके पार्ट्स किए थे 1 2 3 4. Suppose this is 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सो दिस इज 0, इसको आपने लिखना ऐसे है 0 1, हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। 0 1 2 3 4 5 एंड इधर 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब 6 पार्ट में डिवाइड करने के लिए दिस इज अ प्लेन स्केल। क्या है ये? प्लेन स्केल। इसके हमने 10 पार्ट्स कर दिए इधर, तो इट हैज बिकम ए प्लेन स्केल। सपोज इसके मैंने 10 पार्ट्स इक्वल नहीं कर रहे, तो इसको कैसे करेंगे? अगेन यू विल डू द सेम थिंग। आप इसको डिवाइड करना है, ठीक है, तो आप इसको उसी लाइन मेथड से डिवाइड कर लेंगे, ऐसे ज्वाइन करके। समझ में आ गया नहीं आ गया? यस सर। ऐसे करके आप यस सर। तो डायगोनल स्केल में हम क्या करते हैं, एक डायमेंशन तो इधर मेजर करते हैं, दूसरी डायमेंशन जो है वी मेजर ऑन दिस साइड। तो आइदर यू ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम हियर और you draw a line from this side. Idea is
कि इसको आपने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। समझ में आ गया? इसको Yes, sir. डिवाइड करने के लिए आप क्या करोगे? यू विल डिवाइड दिस, इसको यहां से ज्वाइन कर लोगे, इसको यहां ज्वाइन करके इसी तरह ये डिफरेंट पार्ट्स में ज्वाइन हो जाएगा। तो दैट मीन्स एक लाइन तो आपकी ऐसे खिंच जाएंगी लाइन में, ठीक है, दीज आर द हॉरिजॉन्टल लाइंस, और एक लाइन ऐसे खिंच जाएंगी वर्टिकल लाइंस। गॉट द आइडिया? तो यहाँ ग्रिड बन जाएगी। इस ग्रिड से हम इसको ऐसे डायगनली अटैच कर देंगे ऐसे, and then we will measure. So this type of scale is known as a diagonal scale, which measure the distance up to the 2 decimal places. Okay. So now let us see in this problem what is the diagonal scale first. So we have seen that a plane scale gives only the 2 dimension as a unit and its subunit or the fraction. ठीक है? The diagonal scale gives the 3 successive dimension, that is a unit, a subunit and subdivision of the subunit. समझ में आया? The principle of construction of diagonal scale is as follows. Let xy be a line in the figure, okay, a subunit. So from the y draw the perpendicular, okay, as I told you, x, y, z. Now you divide this into 10 parts and you can find the subunits. समझ में आ गया? Yes, sir. Okay. Now this is a division. Okay. Now we'll see here how to draw a scale. So the distance between Delhi and Agra is 200 kilometers. Okay. In a railway map, it is represented by a line 5 centimeter long. Okay. Find its RF. Draw the diagonal scale to show the single kilometer and maximum of 600 kilometers. So maximum distance कितना आ गया यहाँ? 600 kilometers. ठीक है? और ड्राइंग पे लाइन कितनी दिखा रखी है? 5 सेंटीमीटर। 5 मैक्सिमम centimeters. साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट कितना है? 200. So we can kilometers. calculate the RF. Okay. Yes, sir. So you see here solution. So RF is 5. It is the dimension on the drawing divided by 200 kilometer maximum dimension. ठीक है? RF निकल गया। तो इसको कैसे किया? 200 kilometer into 1000, that will be meter, into 100, so that will be the centimeter. क्लियर नहीं? मैं करके दिखाऊं? क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. Clear है. ठीक है ना? ये अरे कुछ बच्चे तो बिल्कुल ही घनचक्कर हैं, बता रहा हूं। 200 इंटू 1000, सो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000 मीटर। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। तो इसको डिवाइड कर लिया। जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो इट विल बी 1/40,000। ठीक है? सो दैट मीन्स द लेंथ ऑफ स्केल, अगर आपने इसको सेंटीमीटर में करना है तो आप कैसे करेंगे? 600, मैक्सिमम लेंथ कितनी है? 600 किलोमीटर. सो 600 सेंटीमीटर में किलोमीटर चेंज को कर आपने देंगे. सेंटीमीटर से सेंटीमीटर. कन्वर्ट कर लिया। सो लेंथ ऑफ स्केल कितनी आ गई? 15 15 centimeter. सेंटीमीटर। क्लियर? Yes, sir. अच्छा, अब Yes. देखो, ड्रॉ ए लाइन विच इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, it will represent the 600 kilometer. Divide this into the 6 equal parts. तो एक पार्ट कितना शो करेगा? 100 किलोमीटर. Divide the first division into 10 equal parts.
ईच विल रिप्रेजेंट द 10 किलोमीटर, क्योंकि 100 किलोमीटर तक का है, ठीक है। एंड ड्रॉ ए लाइन लेफ्टवर्ड फ्रॉम एनी डिस्टेंस। तो दिस यू कैन सी इन एनिमेशन कैसे बनाना है। ये आपने पहले लाइन ड्रॉ कर ली 15 सेंटीमीटर की, क्लियर। यस सर। ये डिवीजन कर लिया इसके, ठीक है। तो आपने कैसे किया, 0 to 500, मैक्सिमम डिस्टेंस आपको यहाँ दिखे कितना देना है, 569 कहता है ना, इंडिकेट द फॉलोइंग डिस्टेंस। यहाँ कहता है मैक्सिमम 600 किलोमीटर। तो 0 से 500 तक इधर आ गया, 100 किलोमीटर इधर आ गया, तो कितना हो गया, डायगोनल स्केल शोइंग द 600 किलोमीटर। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि यू हैव टू ड्रॉ दिस। ओके, नाउ यू डिवाइड दिस इनटू द 10 इक्वल पार्ट्स। तो वो 10 किलोमीटर आ जाएगा एक। अभी ये डायगोनल स्केल बनाने के लिए दिस यू टेक ए सुटेबल डायमेंशन, ठीक है। ये आप 1 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर कुछ भी बना लीजिए। आपने कितना किया, अब इसको 10 में डिवाइड कर लिया आपने। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, समझ में आ गया। इसको आप इजीली डिवाइड कर सकते हैं, अदरवाइज लाइन मेथड से डिवाइड कर सकते हैं, यस सर। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, 10 पार्ट में डिवाइड हो गया। इसका तरीका ये है, या तो इसको ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए और इसको ऐसे करके डिवाइड कर लीजिए, अदरवाइज यू डिवाइड दिस। सो आई थिंक देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम नाउ। नो सर। ओके, नाउ यू सी, आपने क्या किया, इसका जो लास्ट पॉइंट है वो इससे डिवाइड, ये इससे ज्वाइन कर लिया पहला पॉइंट ज्वाइन। फिर आपने इसके पैरेलल लाइन खींच दी सारी, ड्रॉ ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू दिस। समझ में आ गया। यस तो सर। Yes. ये आपका डायगोनल स्केल तैयार हो गया। यहां तक क्लियर है। यस सर, क्लियर है। Yes, sir. यस सर। तो ये RF इसका हमने कैलकुलेट कर लिया था ऊपर, 1/40,000। Yes, sir. तो now we have to represent these distances, that is 220 किलोमीटर, ये जो दिया हुआ है, सॉरी जस्ट अ मिनट, कहाँ गया, so you see here, so it is 569, so कैसे हुआ, 500 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने 6 मेजर करना है। सो यू हैव गॉन इट लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन आ गई, ठीक है। इस पे आपने 9 डिस्टेंस ऊपर चले जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो दिस इज अ पॉइंट। सो यहां से परपेंडिकुलर डाला, तो ये कितना आ जाएगा, 569। यू गेट द पॉइंट। यस सर। दूसरा डिस्टेंस मेजर करते हैं हम। सपोज 459, तो 459 के लिए 100 200 300 400, 59, अगला पॉइंट 5 है, तो 5 पॉइंट लिया आपने, 1 2 3 4 5, 5 पे 9, तो 9 ऊपर चले गए। समझ में आ गया कैसे मेजर किया। यस सर, समझ में आ गया। उसके बाद तीसरा डिस्टेंस है अपने मेजर करना, से इट इज गिवन 336, तो 3 इधर आ गए आप, ठीक है। 3 के 300 बाद उधर। 3 पॉइंट्स, 1 2 3, और 6 पॉइंट, सो 1 2 ऊपर। 3 4 5 6। समझ में आ गया। यस सर। इसके बाद 222, तो 222 इज सिंपल, 200, तो 2 यूनिट्स एंड 2 यूनिट्स। तो दिस वे द डायगोनल स्केल इज कंस्ट्रक्टेड। ये क्लियर हो गया बेटा, नहीं हुआ। यस सर, क्लियर हो गया। हाँ, डिग्री में Yes, पढ़ोगे sir. ये, तो यहाँ पे मैं सिर्फ प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये आपको दी जा रही है, तो इसको आप समझ लीजिए। उसके बाद मैं आपको ट्यूटोरियल शीट PDF कॉपी भेज दूंगा जो आपको बनानी है, ठीक है। ओके सर। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं,
comparative scale. So comparative scale is a scale which is used to compare. Okay. कंपैरेटिव स्केल में भी हम अगले टर्म पे पढ़ लेंगे, इसको पढ़िएगा पहले। सिर्फ ये देखिए कंपैरेटिव स्केल मीन्स एक स्केल नीचे बन गया और एक स्केल ऊपर बन गया, ठीक है। तो वी हैव कंपेयर्ड, ये सब एग्जांपल्स हैं। तो दिस यू कैन टेक अ स्केल ऑफ कॉर्ड्स, जब हमने कोई सेक्टर को डिवाइड करना हो, ठीक है, सो वी यूज द स्केल ऑफ कॉर्ड। दिस इज स्केल ऑफ कॉर्ड। दिस वी यूज टू ड्रॉ विद द कंपास, ठीक है। Yes, sir. So this is scale of chord. Yeah. So I think we should stop here. Or so this way, I have tried to clear as much as I can. So you can see this presentation. I will put in the YouTube, so you can see this. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir.